الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووزع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. The most beneficent has taught you, the mankind, the Quran by His mercy. He created man, He taught him eloquent speech. The sun and the moon run on their fixed courses, exactly calculated with measured out stages for each for reckoning. And the herbs and the stars and the trees both prostrate. And the heaven He has raised high, and He has set up the balance, in order that you may not transgress the balance. And observe the weight with equity, and do not make the balance deficient. And the earth He has put for the creatures. Therein are fruits, date palms producing sheaves-full stalks, and also corn with its leaves and stalks for fodder, and sweet-scented plants. Then which of the blessings of your Lord will you both jinn and men deny? Sadaqallahul Azim. Starting off with today's presentation, first of all, I would like to thank Dr. Zahida Rani, our gracious, our worthy professor, for igniting this spark that was already, the potential was already there. A lot of people with endless qualities and good education, great experience were already present there. But to recognize the gemstone, you need a person, the Johari. To recognize that Johar, we needed a Johari. And Alhamdulillah, we were blessed a few months back by her great presence. And first of all, I would like to have a big round of applause for her. We have started a few months back the series of workshops, and I see many similar faces because many of you have been there in earlier workshops as well. And I hope you would also be seeing that with each passing day, the things are going towards the better side, and we hope and pray that we keep on improving this. After this, I would like to thank the esteemed guest, Dr. वैसे वहीं रखें या लगाना है, ये कवर नहीं करेगा, वो माइक कवर करेगा ना, ये वैसे लगाना है। डॉक्टर शाहिका, ये सिर्फ ब्लूटूथ माइक है, ये हमें कवर नहीं करेगा, इसको लगा दें कवर रिकॉर्डिंग के लिए, और फिर मैं वही पकड़ूँ हाथ में। Like earlier, Dr. Tahir Jamil was there, but then he left after a few months. And Dr. Lamis was the one who joined the Jinnah Hospital Dermatology Department as assistant professor at that time. And I have got an extra connection with her
not only for the fact that she is a very great teacher and she was among those few people who I would look up to in the first days of dermatology. I would like to share a fact about her. She has the same date of birth as that of Napoleon Bonaparte. Impossible does not exist in the dictionary. And the same holds true for Dr. Lamees, because there is a very important fact to tell about the LGA dermatology department, because she was the person who started as heading the department. She was the first person who started watering this little seed to grow up into this beautiful tree, which is now producing fruits. And for Dr. Luqman, I don't have any words to say. All of you know. Anybody who knows aesthetics, who is practicing aesthetics and dermatology, for us, when it comes to aesthetics, the Hakeem Luqman of aesthetics and dermatology is Dr. Luqman. Thank you so much. I've already taken a lot of your time without wasting any more. Our purpose for being here today is to learn something about the hyaluronic magic. I think that this title seems and sounds pretty interesting. And I would say that we have all the beautiful fairies here to teach you that magic, and so that the other younger fairies can spread this beauty of that beautiful magic all around the world with a very safe hand. Because unfortunately, there are reports that there are non-doctors and a lot of complications that we see, and our aim behind arranging this workshop is that good dermatologists who have a good understanding of the skin, who have a good understanding of the anatomy, who have a good understanding of the physiology, who know that where this thing is required, so that if the patient is spending a lot, they should get the worth of their money. So let's move on. As I've talked about the anatomy, if at all you are moving towards the filler, you are planning that you would be performing the filler, the first and the foremost thing, as for everything else, the foundation is very important. If you want to lay down a foundation of performing fillers, the first brick, that golden brick that needs to be laid down, is that of learning anatomy properly. Because that's how you can avoid complication. We are very aware of that. But at the same time, if you want to produce a beautiful aesthetic result, you should be aware of the anatomy. I think I should cut short my sermon here, because another beautiful fairy, the Faria fairy, is here. Assalamu alaikum. Welcome Dr. Faria to the workshop. Madam again needs no introduction. Services hospital people are here, and a lot of people who had been in training, they are here. The smiley faces, these two beautiful smiley faces, rather I would say three. I would like to quote that once upon a time I was sitting among all the biggies and great people of dermatology, and they were saying that in the coming few years, there would be all females around and they would be heading the department. What is going to happen then? And we, like all of us, were kind of the same view that probably it's not going to be something very great. Fingers crossed. But when I see now, I think that there should be a huge round of applause for this girl power. They are doing wonders everywhere, and I hope that this harmony continues. Because we have seen the days when there was not that much of harmony. We are the Powerpuff Girls. Yes. Three Powerpuff Girls. But there are all others are also contributing. So let's move on to the anatomy. Let's lay down the first brick. Hopefully you would have also attended other workshop about fillers, because this is the talk of the town these days. But you will see the difference here, inshallah, because we have a great panel of experts. Dr. Tahir Kamal, Dr. Sadia Siddiqui, Madam herself, and I think if I don't mention the name of Dr. Farhana and Dr. Hina, who were the main people behind organizing this workshop, it would be so unjust. So let's move on to the first part of the presentation. Let's lay down the first brick so that we can build a beautiful building. Move on to the first presentation, which is the anatomy of face, and which will be basically based about filler. Dr. Farhana Nazir.
Thank you, Dr. Ima. I would like to thank, first of all, to our respectable worthy Professor Dr. Zahida Rani for providing me this opportunity, and thanks for our honorable guests and all participants and dear colleagues. So as Dr. Ima told, that anatomy is the basic foundation when we are going to learn about injectable fillers. Without understanding with good anatomy, we are not safe in our field. Bismillahirrahmanirrahim. Anatomy which we need to know for injectable fillers. This is not a classical anatomy which is surgical and radiological. It is quite different, as we must know about all the layers and important vasculatures, and land markings are very important. So face is composed of various layers. Starting from outside, we have skin, then subcutaneous fat, then muscular aponeurotic layer, which is attached through retaining ligaments. Then we have a feet pad, deep fat pad layer, and then periosteum. These all layers are gathered and attached to the underlying skeletal structure through retaining ligaments. This is basically basic framework जिसके ऊपर सारी layers attached होती हैं through retaining ligaments, and retaining ligaments allow these layers for some extent of mobility. Otherwise, they are closely adherent and attached to the underlying surface with this bony structure. We have two types of fat layer in our face. One is superficial and other is deep. Superficial fat layer is above the SMAS and deep fat layer is below the SMAS and over the bony structure. ये जो deep fat layer है, that is basically एज के साथ जो इसमें चेंजेस आती हैं, इसके वॉल्यूम डीवॉल्यूमाइज हो जाता है. आफ्टर 40 years of the age, 1 to 2% of the volume of fat, deep fat is devolumized per year, और ये श्रंकेज हो जाता है with advancing age. Superficial fat layer is mostly related with our weight gain and weight loss. इसमें चेंजेस आती हैं जब हमारा वेट ज़्यादा और कम होता है, तो ये ज़्यादा और कम हो जाता है. एंड एजिंग के साथ जब रिटेनिंग लिगामेंट्स में लैक्सिटी आती है, चेंजेस इन स्केलेटल स्ट्रक्चर होता है, तो इसमें ड्रैग डाउन करता है विद ऑल अदर लेयर्स. दीज आर सुपरफिशियल फैट कंपार्टमेंट्स. बेसिकली ये सारे फेस में डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में प्रेजेंट होता है सुपरफिशियल फैट, और जो मैक्सिमम कॉन्वेक्सिटीज ऑफ द यूथफुल फेस प्रोवाइड कर रहा होता है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. In forehead we have central and middle forehead fat. Then laterally, जो lateral temporal fat है, that is basically in continuation with lateral cheek fat compartment. We have three types of fat compartments superficially in our cheek: lateral cheek fat compartment, medial cheek fat compartment, and middle cheek fat compartment. In orbital area we have superficial, superior, inferior and lateral cheek fat compartment. In jowl area we have superior and inferior fat compartment. They all are superficial and they are bounded by retaining ligaments. Retaining ligaments इनको इनकी पोजीशन में होल्ड करके रखता है, सैक डाउन होने से बचाता है. जैसे यंग फेस में दे आर, इट कीप्स इट इन पोजीशन. तो जब हम कोई भी फिलर, कोई मटेरियल इंट्रोड्यूस करते हैं, तो दीज रिटेनिंग लिगामेंट्स उसको कंसाइज अपने एरिया में कंसाइज करके रखता है, हेल्प करता है. Then we have SMAS. SMAS is superficial muscular aponeurotic layer, जिसमें सारे मसल्स और फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं कॉन्टीन्यूसली ओवर द ईयर्स. एज के साथ जब कॉन्टीन्यूस कॉन्ट्रैक्शंस के साथ इनमें रिंकल्स अपीयर होते हैं एट राइट एंगल, जिसके लिए हम बेसिकली प्राइमरीली बोtulinum टॉक्सिन से ट्रीट करते हैं. सो इट इज़ नॉट रिलेटेड विद फिलर. हाँ, स्टैटिक जो रिंकल्स हमारे पास आते हैं विद एज, वी कैन करेक्ट दैम विद द हेल्प ऑफ डर्मल फिलर्स. Then we have a deep fat layer. Deep fat में जो fat pads हैं, they are just above the bone, and they also contributing in providing volume with the superficial fat pads. Orbital area में we have roof. Roof is a retroorbicularis oculi fat, जो कि behind the eyebrow होता है and superior orbital rim के ऊपर होता है. And inferiorly over the inferior orbital rim we have suborbicularis oculi fat. Cheek area में we have deep medial cheek fat and lateral medial cheek fat. Then we have buccal fat pad. These all are basically contributing. जब हम young face देखते हैं और single convexity of face
चीक पे जो बनती है, जिसे हम ओजी कर्व भी कहते हैं, जो कि एक सॉफ्ट एस शेप कर्व्ड होता है और इट शोज़ ट्रांजिशन ऑफ चीक बल्ज इनटू चीक हॉलो। तो ये कंट्रीब्यूट करता है अलॉन्ग विद सुपरफिशियल फैट पैड्स। सुपरफिशियल फैट पैड्स की जो थिकनेस मैलर एरिया में है दैट इज़ मैक्सिमम 6 मिलीमीटर, तो इट मेजरली कंट्रीब्यूट्स टू दैट। दिस इज़ ओजी कर्व, ये एस शेप्ड कर्व है जो कि चीक पे जो सिंगल बल्ज आ रहा है एक यूथफुल फेज में। एज वी एज हमारी पीछे से स्केलेटल सपोर्ट वीक होती है, चेंजेस इन स्केलेटल स्ट्रक्चर आते हैं, रिटेनिंग लिगामेंट्स की लैक्सिटी होती है, और सुपरफिशियल बेसिकली जो डीप फैट है वो श्रंकेज होती है, और सुपरफिशियल फैट अलॉन्ग विद स्मैश एंड स्किन जब वो ड्रैप डाउन करते हैं तो ये एस शेप कर्व जो है वो फ्लैटनिंग आ जाती है, ओजी कर्व में फ्लैटनिंग, एंड वी कैन रिज्यूम और रीस्टोर इट विद द हेल्प ऑफ डर्मल फिलर्स। These all are attachments of retaining ligaments and they are basically strong fibrous structures जो कि हमारी सारी superficial layers को hold करके रखते हैं, keeping them in their anatomical positions, उनको support करते हैं, और ये traversing through all the layers and keeping them in their position उनको hold करते हैं और support करते हैं और under surface of the dermis पे जाके attach हो जाते हैं। तो in temporal area we have superior and inferior temporal septum जो कि जिसके दरमियान में वहाँ पर टेम्पोरल फैट पैड होता है। इन ऑर्बिकुलर एरिया, ये नहीं चल रहा, इन ऑर्बिकुलर एरिया वी हैव टियर ट्रफ लिगामेंट और ऑर्बिकुलस रिटेनिंग लिगामेंट। देन इन ज़ाइगोमेटिक क्यूटेनियस ज़ाइगोमेटिक एरिया और चीक एरिया वी हैव ज़ाइगोमेटिक क्यूटेनियस लिगामेंट। मैसेटर के फ्रंट पे जो मैसेटर पेरिटेडो मैसेटेरिक फेशिया से अराइज होता है दैट इज़ अपर एंड लोअर मैसेटेरिक क्यूटेनियस लिगामेंट। मैंडिबुलर एरिया में एंटीरियर थर्ड ऑफ मैंडिबुलर से अराइज होता है दैट इज़ मैंडिबुलर क्यूटेनियस लिगामेंट, और वो होल्ड करके रखता है जो हमारे जाउल वाले फैट पैड्स हैं। जिस तरह से एजिंग होती है ये रिटेनिंग लिगामेंट्स लैक्स डाउन, लैक्सिटी इनकी इंक्रीज होती है, तो हमारे फैट पैड्स और मसल्स वो सब सैगिंग में आ जाते। दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग पिक्चर, जिस तरह से फैट पैड्स हमें सपोर्ट कर रहे हैं, जस्ट लाइक अ ब्रांचिंग ट्री। जिस तरह स्टेम अराइज होती है सॉइल से और ऊपर अपने सुपरफिशियल स्ट्रक्चर्स को ब्रांचिंग एंड री ब्रांचिंग होकर सपोर्ट करती है एंड कीपिंग देम इन पोजीशन, जस्ट लाइक दैट हमारे जो रिटेनिंग लिगामेंट्स एंड स्ट्रॉन्ग फाइब्रस बैंड्स ये हमारी सुपरफिशियल सारी लेयर्स को, स्ट्रक्चर्स को दे होल्ड एंड दे रिटेन इन पोजीशन एंड हेल्पिंग देम टू कीप इन पोजीशन। This is aging. Basically all layers are responsible starting from skeletal structure। जब हमारे स्कल में जो विद एज बोन रिजॉर्प्शन होती है, बोन रिसीड करती है, बोन रीमॉडलिंग होती है, उसके एंगल्स में चेंजेस आती हैं, तो वो सुपरफिशियल स्ट्रक्चर्स को उस तरह से सपोर्ट नहीं कर पाता, और रिटेनिंग लिगामेंट्स में लैक्सिटी, फैट पैड्स जो डीप फैट पैड्स की श्रिंकेज है, देन सुपरफिशियल फैट पैड्स एंड स्मैश में जो सैगिंग ड्यू टू ग्रेविटी हो रही है अलॉन्ग विद अदर स्किन चेंजेस, तो वी डेवलप विद एज grooves and bulges in our skin on our face. This is a main nerve supply of the face which is basically from facial nerve जो कि enter होती है base of cranium से आके ear के नीचे से enter होती है face में, पैरोटिड में enter होती है, वहाँ पे जाके 5 branches देती है, उसको pierce करके फिर different branches जो हैं वो face पे supply करती हैं। This is sketch of a young lady which obviously reflects that how vascular our face is. And in case of injectable fillers we need to take care of all of these vessels. बेसिक जो हमारी आर्टीरियल सप्लाई ऑफ फेस है वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितनी इसमें लग रही है। मेन आर्टीरियल सप्लाई इज़ फ्रॉम एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी जिसकी 4 ब्रांचेस हैं जो मेनली सप्लाई करती हैं, एंड 1 ब्रांच ऑप्थेल्मिक ब्रांच फ्रॉम इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। जहाँ जहाँ इस इंटरनल कैरोटिड आर्टरी ऑप्थेल्मिक आर्टरी की ब्रांचेस का एनास्टोमोसिस होता है विद द एक्सटर्नल कैरोटिड, वो सारे एरियाज़ वो हैं जो डेंजर जोन है। उसके अलावा 1-2 और एरियाज़ भी जहाँ हम हाई प्रेशर में अगर कर दें और रिट्रोग्रेड फ्लो हो जाए। तो एक्सटर्नल कैरोटिड की 4 ब्रांचेस में मेन ब्रांच इज़ फेशियल आर्टरी। पॉइंटर नज़र आ रहा है? ब्लू पॉइंटर। अच्छा, फेशियल आर्टरी नीचे से जो आ रही है प्री मेसेटेरिक फेशिया से इट एंटर्स इन फेस एंड क्वाइलिंग और टॉर्शस इसका कोर्स होता है। लिप के पास की सुपीरियर इंफीरियर लेबियल आर्टरीज देती है और फिर एला ऑफ नोज के पास एंगुलर आर्टरी बना के ख़त्म हो जाती है। एंगुलर आर्टरी का एनास्टोमोसिस विद ये येलो वाली सारी ऑप्थेल्मिक आर्टरी को शो कर रही है। ऑप्थेल्मिक आर्टरी की जो ब्रांचेज हैं
ऑप्थेल्मिक आर्टरी के डोर्सालिस नेजल ब्रांच के साथ एनास्टोमोस करती है ऑन द बेस ऑफ नोज। सेकेंड ब्रांच वी हैव ट्रांसवर्स फेशियल आर्टरी। ट्रांसवर्स फेशियल आर्टरी का कोर्स बिल्कुल फेशियल नर्व के साथ साथ पैरोटिड में से गुजर के आती है, डीप होती है, अंडर द स्मैश रन करती है और जो जाइगोमेटिक बोन के लोअर बॉर्डर के साथ पैरेलल रन करती है। देन वी हैव मैक्सिलरी आर्टरी। मैक्सिलरी आर्टरी शो अप नहीं होती फेस पे, इसकी सिर्फ ब्रांचेज आती हैं, बिहाइंड द मैक्सिला रन करती है। इसकी ब्रांचेज आती हैं जो कि फोरामेन के थ्रू फेस पे अपीयर होती हैं, इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामेन में इंफ्रा ऑर्बिटल ब्रांच और मेंटल फोरामेन में मेंटल ब्रांच। Then we have superficial temporal artery, that is also very important. External carotid artery ramus of mandible के पीछे से जाती हुई vertically zygomatic bone के behind जब appear होती है, then it gives superficial temporal artery. Superficial temporal artery further branches देती है front. Blue point है? ये चल रहा है. Okay, this is good. तो यहाँ से हमने एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांचेस, सुपरफिशियल टेम्पोरल, ये फेशियल आर्टरी का कोर्स है जो सारा एंगल ऑफ माउथ के पास से होता हुआ, दिस इज़ बेसिकली सुपरफिशियल। इसलिए इस एरिया में जब भी हम सुपरफिशियल रहना है तो वी मस्ट बी केयरफुल। दिस इज़ ट्रांसवर्स फेशियल आर्टरी जो कि बहुत डीप होती है, डीप अंडर द स्मैश होती है और पैरोटिड के अंदर से पास होती है। एंगुलर आर्टरी बना के जब फेशियल आर्टरी ख़त्म होती है तो यहाँ पे एक एनास्टोमोसिस की साइट है जो कि डोर्सालिस नेजल आर्टरी इज विच इज़ अ ब्रांच ऑफ ऑप्थेल्मिक आर्टरी। दिस इज़ मैक्सिलरी आर्टरी इन ग्रीन कलर। ये फेस पे नहीं आती, ये पीछे से गुजर जाती है बोन के पीछे से और सिर्फ फोरामेन में आके ब्रांचेस देती है इन इंफ्राऑर्बिटल फोरामेन। देन एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी बिहाइंड द जाइगोमेटिक बोन अपीयर होती है और सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी देती है टेम्पोरल फोसा के अंदर। सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी इज़ वेरी सुपरफिशियल बिहाइंड द टेम्पोरल फेशिया एंड ओवर द मसल। और फ्रंटल ब्रांच टेम्पोरल आर्टरी की जो होती है वो भी एनास्टोमोस करती है विद द ब्रांचेस ऑफ ऑप्थेल्मिक आर्टरी जो कि हमारे पास इधर ग्लोबुलर रीजन में है, सुप्रा ऑर्बिटल एंड सुप्रा ट्रॉक्युलर। चेक इसका नहीं है फॉरवर्ड और बैकवर्ड, ठीक है। As there are some warning or danger zones while we talk about vascular supply of the face, and these are obviously very important. Thank you. These all are known as danger zone in case of if we are planning for facial fillers, dermal fillers. Number one, this is glabella. In glabella we have site of anastomosis. एक तो यहाँ पे डायरेक्टली वी हैव ब्रांचेस ऑफ ऑप्थेल्मिक आर्टरी। अगर हम डायरेक्टली इफ फिलर गोज रॉन्ग ब्रांचेस में चला जाता है, इट गोज बैक वो ऑप्थेल्मिक आर्टरी और सेंट्रल रेटिनल आर्टरी में जाके इट कैन कॉज ब्लाइंडनेस। ऑल साइट्स विच आर साइट्स ऑफ एनास्टोमोसिस दे कैन कॉज ब्लाइंडनेस क्योंकि वहाँ से ऑप्थेल्मिक आर्टरी एंड देन सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ऑप्थेल्मिक आर्टरी। दिस नंबर 2 पे हमारे पास टेम्पल है। टेम्पल्स में सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी आ रही है, दिस इज़ वेरी सुपरफिशियल, वी हैव टू मस्ट बी केयरफुल फॉर दिस। और इसकी फ्रंटल ब्रांच एनास्टोमोस कर रही है तो अगर यहाँ पे फिलर वेस्कुलर सप्लाई में जाता है तो वो एनास्टोमोसिस वाली साइड पे इट कैन गो। थर्ड नंबर पे वी हैव नोज़। नोज़ की बेस पे हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट एक एनास्टोमोटिक साइट है जो कि ऑप्थेल्मिक आर्टरी की डोर्सालिस नेजल एंड एंगुलर आर्टरी का एनास्टोमोसिस है। Then we have infraorbital foramen जहाँ पे important neurovascular structures हैं। Then we have perioral area जहाँ पे हमारे पास superior and inferior labial arteries हैं and we have on number 6 nasolabial fold। nasolabial fold में direct anastomosis से कोई साइट नहीं है but यहाँ पे main facial artery जा रही है। अगर हम large volume with high G prime and with good pressure वहाँ पे inject करते हैं तो retrograde flow के साथ हमारा filler यहाँ से ऊपर जा सकता है एंगुलर आर्टरी में और एंगुलर आर्टरी से डोर्सालिस नेजल में और फिर इट कैन कॉज ड्रेडफुल कॉम्प्लिकेशंस। These are all foramen which present in vertical line, supraorbital, infraorbital and mental foramen. They are basically at medial limbic or mid-pupillary line. Important neurovascular structures are passing through these foramen. This is skull basically showing how skull changes with age, with bone resorption, bone receding. स्कल के डिफरेंट एंगल्स चेंज होते हैं और वो अपने एंगल्स पे जहाँ पे अटैचमेंट्स होती हैं ऑब्वियसली अटैचमेंट्स लूज होती हैं, उसकी स्ट्रक्चरल सपोर्ट
अफेक्ट होती है और सुपरफिशियल स्ट्रक्चर्स में लूजनिंग के साथ सैग डाउन होती है विद द लैक्सिटी ऑफ लिगामेंट्स, तो हमारे पास एजिंग चेंजेस आ जाती हैं। और इन जो एज चेंजेस रिलेटेड टू बोनी स्ट्रक्चर सुप्रापेरियोस्टियली जब हम इंजेक्ट करते हैं, वी कैन रिज्यूम फ्यू ऑफ देम। So, as we are talking about anatomy, what we need to know about the base filler? Because we are going through the skin, तो जो topographic landmarking है that is very important कि कौन सी vessel कहाँ से pass हो रही है, which are basically danger zones for us and how we can play safe and where we not to inject and where we inject. इसके लिए हम एक वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, फोरहेड पे हमारे पास ऑप्थेल्मिक आर्टरी की ब्रांचेस हैं, सुप्रा ट्रॉक्लियर एंड सुप्रा ऑर्बिटल। इफ़ वी पिंच आवर मीडियल पार्ट ऑफ ब्रो दैट इज साइट फॉर सुप्रा ट्रॉक्लियर आर्टरी एंड मिड प्यूबिटरी लाइन में सुप्रा ऑर्बिटल आर्टरी अराइज हो रही हैं, दोनों आर्टरीज बोन से एंड दे आर असेंडिंग ऑन फोरहेड। जब बोन से अराइज हो रही हैं, ऑब्वियसली इन लोअर 1/3 ऑफ द फोरहेड दे आर डीप, और जब ये असेंड कर रही हैं अपर 2/3 पे दे बिकम सुपरफिशियल। तो वी नीड टू टेक केयर ऑफ दिस देयर कोर्स कि कहाँ पे वो डीप हैं और कहाँ पे वो सुपरफिशियल हैं, बिकॉज उसके साथ ही हम प्लान करते हैं कि वेयर वी हैव टू बी डीप, कहाँ हमने डीप इंजेक्ट करना है, कहाँ हमने सुपरफिशियल इंजेक्ट करना है। व्हेन वी आर ऑन लोअर फोरहेड, क्योंकि बोन्स डीप हैं, वी मस्ट बी वेरी सुपरफिशियल, बल्कि सबक्यूटेनियस प्लेन में हम देंगे। व्हेन वी आर ऑन अपर 2/3 ऑफ द फोरहेड, वी मस्ट बी सुपरफिशियल, वी मस्ट बी डीप ऑन बोन। दिस इज एस्थेटिक टेम्पल, जो कि हमारा एनाटॉमिकल टेम्पल से थोड़ा डिफरेंट होता है, जिसको हम हॉलोइंग के लिए यूजुअली ट्रीट करते हैं। सुपीरियरली इट इज़ बाउंडेड बाय टेम्पोरल क्रेस्ट, एंटीरियरली विद ब्रो लाइन एंड इंफीरियरली विद zygomatic आर्च एंड पोस्टीरियरली हेयर लाइन होती है। ये हमारा जो एस्थेटिक टेम्पल है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट ब्लड वेसल्स क्रॉस कर रहे हैं। दिस इज सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी एज इट नेम शोज कि ये सुपरफिशियल है, ये बिहाइंड द सुपरफिशियल टेम्पोरल फेशिया होती है, बहुत सुपरफिशियल है। एंड देन वी हैव डीप टेम्पोरल आर्टरीज जो कि टेम्पोरलिस मसल के पीछे हैं और थोड़ा एंटीरियर है, एंटीरियर टू द सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी बट डीप देन द सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी। जो अपर क्वाड्रेंट ऑफ सुपीरो अपर क्वाड्रेंट है, सुपीरो मीडियल क्वाड्रेंट, दैट इज सेफ टू इंजेक्ट बिकॉज वहाँ पे कोई ब्लड वेसल नहीं है, दे आर क्रॉसिंग बिहाइंड दैट क्वाड्रेंट, तो यहाँ पे हम सेफली इंजेक्ट कर सकते हैं इफ़ यू आर ऑन बोन। देन ऑन लेटरल चीक वी हैव zygomatic बोन, इसका अपर बॉर्डर है, लोअर बॉर्डर है, और यहाँ पे एक छोटा सा zygomatic फेशियल फोरामेन होता है जहाँ से ब्लड वेसल क्रॉस कर रही होती है, तो वी हैव टू टेक केयर ऑफ दैट, जो कि ऑर्बिटल रिम के बिल्कुल लेट्रो इन्फीरियरली होता है। इफ़ वी आर ऑन बोन वी आर सेफ फॉर द लेटरल चीक। लेटरल चीक zygomatic बोन के ऊपर भी ब्लड वेसल्स रन कर रही हैं, इसके बिल्कुल नीचे पैरेलल भी ब्लड वेसल्स रन कर रही हैं। दिस इज़ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी जो कि रेमस ऑफ मैंडिबल के बिहाइंड रन करती हुई zygomatic बोन के पीछे से गुजरती हुई ऊपर जाकर सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी देती है। तो ऊपर हमारे पास यहाँ कोई ब्लड वेसल नहीं है, इसके बिल्कुल इंफीरियर बॉर्डर के साथ वी हैव ट्रांसवर्स फेशियल आर्टरी जो कि काफ़ी डीप होती है, पैरोटिड ग्लैंड के अंदर से ट्रैवल करती हुई स्मैश के पीछे से गुजरती है। तो इफ़ वी आर ऑन बोन फॉर डिफरेंट साइड्स वी आर सेफ इन दिस एरिया। वी हैव टू अवॉइड गोइंग अप एंड डाउन, वी मस्ट बी ऑन द बोन। वेस्कुलर सप्लाई के अकॉर्डिंगली वी डिसाइड अवर प्लेन ऑफ इंजेक्शन। जहाँ पे ब्लड वेसल डीप है वी मस्ट बी सुपरफिशियल, जहाँ पे ब्लड वेसल सुपरफिशियल है वी मस्ट बी डीप। इन पेरी ऑर्बिटल एरिया और इन मीडियल चीक वी हैव infra-orbital rim. This is important landmark when we are planning to inject orbital area or medial cheek.
and then we have infraorbital rim and then we have lid cheek junction. Infraorbital rim से बिल्कुल नीचे 1 centimeter below we have important foramen in our bone, that is infraorbital foramen, जहाँ से important neurovascular structures जा रहे हैं and we have to take care of that. So mid pupillary line में ही ये सारे foramen supraorbital, infraorbital and mental foramen आते हैं. तो mid pupillary line के medial हमने नहीं रहना, that is a no go zone, और अगर रहना है तो we must use cannula for this area. और इसके बिल्कुल साथ डॉर्सलिस नेजल आर्टरी एंड एंगुलर आर्टरी का एनास्टोमोसिस भी हो रहा है, तो दिस इज़ नो गो एरिया. अब अगर हमें यहाँ इंजेक्ट करना है फॉर मीडियल चीक हॉलिंग, वी मस्ट बी वेरी सुपरफिशियल. दिस इज़ मिड पिपलरी लाइन. इसके लेटरल वी आर सेफ इफ़ वी आर ऑन बोन एंड एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी से जो मेन ब्रांच आ रही है फेस पे, दैट इज़ फेशियल आर्टरी, जो कि प्री मेसेटेरिक एरिया में टॉर्शियस कोर्स के साथ असेंड करती है टुवर्ड्स द एंगल ऑफ माउथ. एंगल ऑफ माउथ पे आके इट गिव्स ब्रांचेस, और फिर उसके बाद ये एला ऑफ नोज़ के साथ, अच्छा ये यहाँ पे जो लिगामेंट होता है या हमारे पास फोल्ड आता है कि उसके लेटरल होती है. तो इफ़ वी आर मीडियली वी आर सेफ, और अगर हम इसको मीडियली ट्रीट करते हैं वी आर सेफ. बट क्योंकि ये सारा इसका पैरेलल कोर्स जा रहा है लॉन्गिट्यूडनल और ऑब्लिक, तो हम अगर यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन में बोन पे इंजेक्शन देते हैं, दिस वेसल इज़ सुपरफिशियल. तो इफ़ वी आर ऑन बोन वी आर सेफ. हमारी डायरेक्शन ऑपोजिट साइड ऑफ कॉर्नर ऑफ माउथ पे होगी एंड जो इंजेक्शन है वो डीप होगा, तो वी आर सेफ. अगर पैरेलली हमें सुपरफिशियल उसके लिए इंजेक्ट करना है तो वी मस्ट बी मीडियल टू दैट लिगामेंट. फिर ये सुपरफिशियल फेशियल आर्टरी ऊपर जाके एंगुलर आर्टरी देती है और ख़त्म हो जाती है. एंड एंगल ऑफ माउथ पे इट गिव्स सुपीरियर लेबियल एंड इंफीरियर लेबियल आर्टरीज. These arteries are basically under the orbicularis oris muscle, और इसलिए हमें इस एरिया में बहुत सुपरफिशियल रहना है बिकॉज वेसल्स आर डीप टू द मसल. तो इंजेक्टिंग पॉइंट्स जो हमारे होंगे इट मस्ट बी सबक्यूटेनियस. अच्छा, यहाँ से हमारे पास जो मैंडिबुलर एंगल के साथ वेसल आ रही है, दैट इज़ मैंडिबुलर मार्जिनल मैंडिबुलर ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व, फेशियल आर्टरी. मार्जिनल मैंडिबुलर ब्रांच रन करती है अंडर सरफेस, अंडर साइड ऑफ द मैंडिबल के साथ. तो जब हम अपने मेरियोनेट लाइन के लिए प्लान करते हैं तो हमें जो लोअर हमारा इंजेक्शन है, दिस इज़ कॉल्ड टॉवर टेक्निक, है हम एक लोअर साइड पे इंजेक्शन देंगे मैंडिबुलर लिगामेंट रिटेनिंग, मैंडिबुलर रिटेनिंग लिगामेंट के मीडियली रहते हुए उसको सपोर्ट करने के लिए 3 पॉइंट्स हम डिसाइड करते हैं. तो इसमें हमें जो इंजेक्टिंग पॉइंट है ये हमें ऊपर से अप्रोच करना है बिकॉज लोअर साइड पे वी हैव ब्लड वेसल. देन जो मीडियल पॉइंट है इसका, it is just beside the mental foramen, so we must be in median plane or superficial because low deep plane में we have important vascular structure. Then on जो हमारा third point है that must be very superficial because हमने अभी बात की थी कि जो inferior labial artery है that is behind the muscle, तो हमें superficial रहना है for this point. Superficial, median plane and deep. These 3 points are for marionette lines. जब हम चीक को ट्रीट करते हैं तो यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट ब्लड वेसल नहीं है, तो हम इसको जो है वो इजीली सेंट्रल पॉइंट में ट्रीट कर सकते हैं. ये एरिया है जहाँ पे हमारे पास इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं और जो ब्लड वेसल पास हो रही है यहाँ से बिहाइंड द रेमस, वो मेन एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी बिहाइंड द रेमस है. तो अगर हम रेमस को मिस कर देते हैं और हमारा इंजेक्शन पॉइंट बिहाइंड द मैंडिबल बोन चला जाता है तो इट कैन गो इनटू एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, वहाँ से इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और फिर काफ़ी सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं. तो वी मस्ट बी ऑन बोन इन दिस एरिया. Another important structure that is parotid gland, it is situated in median plane over here. तो इस एरिया में अगर हम बोन पे हैं वी आर सेफ, अगर हम सुपरफिशियल हैं बिल्कुल सबक्यूटेनियस रीजन में वी आर सेफ. लेकिन जैसा कि पैरोटिड ग्लैंड से बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स गुजर रहे हैं, फेशियल नर्व की सारी ब्रांचेस, ऑल 5 ब्रांचेस आर देयर इन एम्बेडेड इन पैरोटिड ग्लैंड. तो अगर हम नीडल से अप्रोच करते हैं इस एरिया को और कोई भी ब्रांच को हम हिट करते हैं तो हमारी जो है वो हेमीपेल्सी और इस तरह के कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो सकती हैं. तो वी मस्ट बी विथ कैनुला, ट्रीटिंग विथ कैनुला इन दिस एरिया. अगर यहाँ पे हमें ट्रीट करना है तो नीडल को अवॉइड करना है. These were basically बेसिक लैंडमार्क्स जो कि हम फिलर को जब प्लान करते हैं तो कि वहाँ कहाँ हमें सुपरफिशियल रहना है अकॉर्डिंग टू ब्लड सप्लाई, कहाँ पे हमें डीप रहना है अकॉर्डिंग टू वैस्कुलर लैंडमार्क्स.
So these were very important. It was summarized anatomy for injectable fillers. To know about the important landmarks and different planes and why we are injecting, why we are going deep over the bone, why we are injecting superficial. So we must know it. Thank you so much. Thank you very much, Dr. Farhana. It was a very insightful lecture and we became well versed with the facial anatomy and we are ready to inject fillers.